परमेश्वर का धन्यवाद करते हम जो कुछ भी सुना उसके लिए। I want to thank God for whatever we've heard today. और हम सबको पता चलना चाहिए, जैसे भाई ने कहा, हमारे लिए परमेश्वर ने जो गोल रखा है वो क्या है। And all of us should know what goal God has set for us. एक व्यक्ति के जीवन में अगर गोल ही नहीं है तो वो एमलेसली कहाँ पे भी चलता रहेगा। And if there's no goal in a person's life, he'd be moving around so aimlessly. जो कोई बोलेगा वो उसके पीछे चलेगा। And whatever anyone says, he would just follow that person. See, जब काम की शुरुआत थी मेरा कुछ गोल नहीं था। When I started my work, I had no goal in my life. मैं पहले बैंक में चले गया, First I went to bank. फिर इंश्योरेंस में चले गया, Then I went into फिर insurance. लॉजिस्टिक्स में चले गया, And then I went into भटकता logistics. रहा। I was just roaming around लेकिन मेरा कुछ गोल ही नहीं था because I didn't have a goal in my कि मैं life. क्या करूं, That what I should be कि मैं doing, क्या बनूं। what I should become. लेकिन जब एक व्यक्ति के पास गोल होता है But when a person has a goal, तो वो उसी की ओर एम करते रहता है, then he will be aiming towards that. वो यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। He will not be roaming here and तो there. जैसे भाई ने कहा, परमेश्वर ने हमें अपना गोल बताया है। Here, like brother said, that God has revealed His goal to us, कि हमें यीशु जैसा बनना है। that we should become like Christ. हमारे जीवन का और कोई गोल है ही नहीं। And there's no other goal for our life. एक्चुअली क्रिश्चियन भाई और बहनों का दूसरा कुछ पर्पस हो ही नहीं सकता। And actually for a Christian brother or sister, there can't be any other goal in life. अगर हमारा कुछ और ही गोल है, And if we have any other goal, जैसे कुछ लोग यीशु के पीछे आ रहे थे एक बार, like some people were coming behind Jesus, पर यीशु ने उनसे कहा, तुम इसलिए नहीं आते कि तुमने अचंभ काम देखा। and Jesus turned around and said to them, you're not coming to me because you saw all the great miracles, तुम इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम रोटी खा के तृप्त हो चुके हो। but you're coming behind me because you ate of the bread and fish. उनका गोल अलग था। Their goal was different. उनको यीशु के पीछे जाना था क्योंकि उनका पेट भर रहा था। They were going behind Jesus because their stomach were filled. सो बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आते हैं। So many people come behind Christ. कुछ लोग हीलिंग के लिए आते हैं, Some people come for healing. कुछ लोग शादी विवाह के लिए आते हैं, Some people come for getting a कुछ लोग बच्चा नहीं पैदा हुआ उसलिए आते हैं। Some people come so that they can have children. लेकिन लोगों को ये सब मिला, ये लोग वापस चले जाते हैं And when these people get those things, they go back क्योंकि उनका गोल वही था। because that was their only goal. लेकिन प्रभु के साथ कौन रहता है? But who was the one who was remaining with Christ? जो प्रभु के लिए आया है। The people who came for God. देखो, यीशु मसीह ने अपना पूरे जीवन का चरित्र, जो यीशु मसीह ने एक वचन में उसने प्रकट किया है। The whole character of Jesus is there in one single verse. यूहन्ना अध्याय 6 में हम देख सकते हैं, John chapter 6, उसके 38 वचन में लिखा है, verse 38. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. देखो, यीशु मसीह की एक ही इच्छा थी कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। Because here Jesus had only one goal, to obey the will of His Father. ये यीशु मसीह के लाइफ को डिस्क्राइब करता है। That is what describes Jesus' उसकी life. यही इच्छा थी कि मैं पिता को जानूं और उसकी इच्छा को पूरा करता रहूं। And his only aim in life was to obey his Father and to fulfill His ब्रदर्स will. एंड सिस्टर, हमारे अंदर का भी यही डिजायर होना चाहिए कि हर पल हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर को महिमा मिले। And brothers and sisters, we also should have that desire that no matter what we do, every single moment, we should give glory to God. जैसे हम 1 कोरिन्थियन 10:31 में हमने आज का कमांड पढ़ा, Like in 1 Corinthians 10:31, we read today's command. वहां पर लिखा था कि जो कुछ भी हम करें उसमें परमेश्वर को महिमा मिले। That in that it says, whatever we do, let us do it unto the glory of लेकिन God. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सबको एक बात मालूम होना चाहिए कि हम वीक है। Brothers and sisters, we need to realize one thing, that we are weak. हम खुद के ताकत से, खुद के बुद्धि से, खुद ने कितना ज्ञान इकट्ठा किया है, उससे हम यीशु जैसा कभी नहीं बन पाएंगे। And we cannot by our own strength or wisdom or knowledge become like anything like Jesus. कितने साल से हम मसीहा है, ये हमको यीशु जैसा कभी नहीं बनाएगा। And the amount of time that we have been Christians, that will not make us like 10 साल Christ. में यीशु में, 50 साल में यीशु में, वो कभी मुझे यीशु जैसा नहीं बनाएगा। Whether we've been with Christ for 10 years or 50 years, that will not make us like सिर्फ Christ. पवित्र आत्मा हमें यीशु जैसा बना सकता है, But only the Holy Spirit can make us like क्योंकि Christ. यीशु मसीह खुद कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें वो हर चीज सिखाएगा जो वो मुझ में से निकलती है। And because Jesus Himself said, when the Holy Spirit come, He will teach you everything that जो हमारे अंदर से निकलती है। that comes from Christ. और देखो, अब्राहम का जिंदगी कैसा था? How was Abraham's life?
परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, God promised him, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी देखता है but when he saw his own life, मरा हुआ सा, he saw that he was dead. सारा को देखता है, When he saw Sarah, उसका गर्भ भी मरा हुआ सा। she was also barren. ब्रदर्स एंड and सिस्टर, dead. हमारी भी अवस्था ऐसी हो सकती है। Brothers and sisters, our state also will हमारा be like क्रिश्चियन this. लाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। Maybe our Christian life is not at all like that. कितना गलती हम करते रहेंगे, Maybe we are doing many mistakes. कितने बार डिस्करेजमेंट आएगा, There'll be a lot of discouragement. हम सोचते भी रहेंगे कि क्या मेरा जीवन मसीह जैसा है। And we'll be wondering, is my life like Christ? लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक वचन बताता हूँ आपको जो मुझे बहुत ब्लेस किया है। Brothers and sisters, I want to tell you one verse which has blessed रोमन me. अध्याय 4 Romans chapter 4, उसका 20 वचन में हम देखते हैं अब्राहम ने क्या किया। Romans 4:20, we see what Abraham did. उसके 19 वचन में देखते हैं अब्राहम की दशा कैसी थी, उसकी और सारा की दशा मरी हुई सी थी। In verse 19, we see the state of Abraham and Sarah state that it was dead. लेकिन बाइबल कहते हैं वो निर्बल नहीं हुआ, But Bible says that he was not. अपनी अवस्था देख के निर्बल नहीं हुआ। He didn't see his own state and waver. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको ये मालूम रहना चाहिए, अपना जीवन को देखकर आप निर्बल मत हो जाओ। Brothers and sisters, we need to remember that one thing, that we shouldn't see our own life and become weak. और आगे लिखा, और अविश्वासियों के परमेश्वर के वायदे पे उसने संदेह नहीं किया। And he didn't show unbelief about the promise that God made. परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया वो हमें यीशु जैसा बनाएगा, उस पर हम संदेह कभी नहीं करना चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर। And God has given us a promise that we have to become like Jesus, and let's not doubt that. लेकिन वो कहता है आगे दृढ़ होके परमेश्वर की महिमा की। But he became strong and he gave glory to God. अपनी अवस्था देख के ही कि मैं मरा हुआ सा हूं, फिर भी प्रभु की महिमा की। And seeing his own state that I am dead, अद्भुत बात है ना ब्रदर्स एंड सिस्टर। he gave glory to God. It's so amazing. अपनी दशा देखी मरी हुई सी, फिर भी प्रभु की महिमा की। He saw his state that he was dead, and yet he gave glory to God. और 21 वचन देखो, अद्भुत है। And verse 21 is also very amazing. और निश्चय इस बात को जाना, And being fully convinced कि जिसने उसकी प्रतिज्ञा की है that what he had promised, वह उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य he है। was also able to perform. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमसे प्रतिज्ञा किसने किया है? Brothers and sisters, who has made a कोई promise to पास्टर us? ने नहीं किया है, Not some कोई pastor, एल्डर ने नहीं किया है, not some कोई elder, भाई बहन ने नहीं किया है, not some brother or हमसे sister. प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है। This promise was made to us ये by God, परमेश्वर का वचन है। and this is God's word. और वो कहता है कि किसने मुझसे वायदा किया है, And it says, who has promised, वो उसे पूरा करेगा। he only will fulfill हम it. उसे पूरा नहीं कर पाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, We will not be able to fulfill अपने it. ताकत से कभी नहीं कर पाएंगे। By our own strength, we will not be able to लेकिन fulfill it. हमको एक चीज करना है, But we should do one thing. हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है, We should not be disappointed. हमको विश्वास करना है We should believe कि मुझसे प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है, that this promise God has given वो us, उसे पूरा करेगा। and He will fulfill और it. प्रत्येक दिन क्या होगा ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको पता है? And you know what will happen every day? वो छोटा छोटा काम हमारे अंदर हम देख पाएंगे। We will be able to see the हम small, सबने वो small. अनुभव भी किया होगा। We will be able to see God's work in the small, small क्या हम things. सबने वो अनुभव किया है? Have you all experienced छोटा that? छोटा काम Small, small things जो परमेश्वर हमारे भीतर कर रहा है। that God is working in us. और पौलुस क्या कहता है? And what does Paul say? जिसने मेरे अंदर ये काम शुरू किया है, That he who began the good work in me, वो मसीह यीशु के आने तक मुझ में काम करेगा। that he will be faithful to सो complete मे it. गॉड हेल्प, हम परमेश्वर हम सबकी सहायता करे God will help each one of कि us. हमारा विश्वास कभी निर्बल ना हो। That our faith shouldn't दिन waver. प्रत्येक दिन हम परमेश्वर की ओर देखें, And every day we should look unto God. पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। Let's ask for the help of the और Holy परमेश्वर Spirit. ने हमसे वायदा किया है, And God has made us, वो ही उसे पूरा करेगा। and He will आमीन। perform it. ब्रदर क्लिफर्ड ने जो कुछ भी शेयरिंग किया बहुत ही प्रोत्साहन भरा था। What Brother Clifford has shared with us is so encouraging. और फिर एक बार हमको याद दिलाया कि हम अपना लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। And once more we were reminded that we shouldn't lose our goal, कि यीशु मसीह के जैसे हमको दिन प्रतिदिन बनना चाहिए। that we should become like Christ day by day. और ये सभी के लिए है। And this is for everyone. और खासकर हम देखते कि हम छोटे बच्चे सोच सकते कि अरे मेरे लिए तो कोई मतलब मैं यीशु मसीह के जैसे बन नहीं सकता हूँ। And small children also may think that we cannot become like क्या Christ. बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे? Are the children listening to me? आपको पता है जब जीसस आपके जितना था, Do you know when Jesus was like you,
जब वो चर्च में जाके बैठता था, when Jesus used to go and sit in the church, क्या करता था पता है? and you know what he used to do? बहुत चिल्लाता था, मस्ती करता था. Was he naughty and making noise? आप बाइबल में लिखा है कि वो चर्च में बैठकर सुनता था कि ये क्या बोल रहा है. Bible tells us that Jesus used to sit and listen carefully to what was being said. ये हम सभी के लिए एग्जाम्पल है, बच्चे लोग के लिए एग्जाम्पल है. This is an example to all the children. क्या बच्चे हम ये एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं? Can we follow this example? ये हार्ड है, मुश्किल है. Is it difficult? यहाँ पर बैठकर कि ब्रदर्स और सिस्टर्स हम शेयरिंग कर रहे हैं, हम एटलीस्ट सुन सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं. Here the brothers and sisters are sharing. At least we should listen to what is being और ये said. चीज में जीसस आप लोग के लिए एग्जाम्पल है And for this, Jesus is an example for you people. कि आप यीशु मसीह के जैसा बन सकते हो इस एरिया में कि यीशु ये लोग क्या बोल रहे हैं सुनने के लिए. And you can become like Jesus by listening to what these people are saying. तो हम सभी के लिए एग्जाम्पल है ये. And this is an example to each one of और us. ब्रदर ने जो बता रहा था कि शेयरिंग में कि हम यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हमको एक हमारे अंदर इच्छा चाहिए. And they, like brother was saying that to become like Christ, there should be a desire in us. परमेश्वर अपने बच्चों को फोर्स नहीं करता हो And God doesn't force His children कि यीशु मसीह के जैसा बने, that you should become like Christ. बट हमारे अंदर एक लालसा और इच्छा रहेगा तो परमेश्वर हमको मदद करेगा. But there should be a greed and desire in us to become like Christ. और उसको हम पूरे, और एक ब्रदर ने कोट किया कि हम उसको पूरे दिल से अगर खोजेंगे या ढूंढेंगे उसको तो हम उसको पाएंगे. And in somewhere else it is written, if we search Him with all our heart, then we will find Him. तो हम हमारा ये लक्ष्य, हमारा ये गोल हमको नहीं भूलना चाहिए And this goal we should not forget, कि हम यीशु मसीह के जैसे हमको बनना चाहिए. that we should become like और Christ. हमको बहुत सारा चीज़ों में हमको लगता है कि बहुत हार्ड है, मुश्किल है और बहुत बोरिंग भी है. And many things may seem like difficult and hard and even boring. भाई जैसा बता रहे थे कि बहुत ही जॉयफुल है, बहुत ही आनंद भरा है. But like brother was saying, it's actually very joyful. क्योंकि हम पूरे दिल से ढूंढते नहीं, इसलिए हमको वो बोरिंग और आनंद नहीं लगता है. Because we don't search with our full heart, that's why it seems boring जिस to दिन us. से हम पूरे दिल से हम यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हम ढूंढेंगे, The day we start searching to become like Christ with our whole heart, अब मैं बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली परमेश्वर आपको हेल्प करेगा यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए. I want to tell you that that day definitely God will help you to become like Christ. गॉड ब्लेस यू. God bless you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, जो कुछ भी हमने सुना उसके लिए. I want to thank God for whatever we've heard today. मैं बहुत ही कुछ लाइंस में ये चीज़ बताना चाहूँगी. जब भी ब्रदर सब वचन शेयर कर रहे थे और बता रहे थे, I just want to share a few lines when brother was sharing and speaking. और लाइक हमको फैमिली से शुरू करना है कि हमारे स्पाउस के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, चर्च में कलीसिया के साथ कैसे रहना चाहिए, इस दुनिया में हमको किस तरीके से रहना चाहिए जिस तरीके से हम यीशु मसीह को दिखा सके लोगों को. Brother was telling about how we have to be with our spouse, our children, our near and dear ones, and with the people in our church, how we should be like Jesus. मैं एक चीज़ मुझे याद आ रहा था कि हम अगर सच में उसके बच्चे हैं तो हमारे अंदर वो स्वभाव ऑटोमेटिक आ जाएगा. And if we are truly like children, then that attitude will automatically come in us. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो हस्बैंड हैं उनको फ़िश बहुत पसंद है. For example, like my husband likes fish a lot क्योंकि उनके डैडी को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है. because his father liked fish a lot. तो वो उनके अंदर वो कैरेक्टर्स आ गया कि मुझे भी फ़िश नॉनवेज चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो उनके डैडी के थ्रू उनको आया कि उनको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है. So like from his father, because his father liked fish, so from his father he got that same trait. मैथ्यू में लिखा है कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है. In Matthew, Jesus says that be perfect because your heavenly Father is perfect. मैं सोच रही थी कि प्रभु हम सिद्ध कैसे बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम छोटी छोटी चीज़ में, जैसे आज हमने एक मेमोरी वर्स बड़े लोगों का याद किया कि तुम चाहो खाओ या जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो. I was asking God, how can we be perfect? Like in this simple, like the memory verse that was said today, whatever you do, in whatever you say, do it for the glory of God. और उसके लिए हमको सारा बाइबल बाय हार्ट होना चाहिए, तभी जाके हम परमेश्वर के रियल में परमेश्वर को फॉलो कर पाएंगे. And for that we need to be by hearting the whole Bible. Then only truly we can be following Christ. और मैं तो अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझती हूँ कि शायद मैं
संडे अपना जो बाइबल वर्स है वो भी ठीक से बाय हार्ट ना कर पाऊँ. And I find myself so weak that even our daily Sunday verse also I'm not able to memorize. तो हम कैसे परमेश्वर की तरह बन पाएंगे अगर हमको स्क्रिप्चर ही ठीक से याद नहीं है? तो हम कैसे उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे कि पिता की तरह हम बने, यीशु मसीह की तरह बने? Then if we can't even memorize a verse, if we don't even know God's word, then how can we follow and obey Christ? एक जब प्रोस्टिट्यूट को लेकर आया गया यीशु मसीह के पास, तो वचन में लिखा था कि उसको पथराव करके मार डाला जाना चाहिए. When this woman caught in adultery was brought to Jesus Christ, and it was told that she should be stoned and put to death. वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसको किस तरीके से बचाना चाहिए. But nowhere in the Bible, in the commandments, it is said that how she can be rescued. यीशु मसीह ने कैसे पिता की इच्छा को पूरा किया? But and see how Jesus fulfilled God's will. उसने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना. Jesus heard the voice of the Holy Spirit. पिता क्या कहना चाह रहा है इस केस में, उसको किस तरीके से हैंडल करना है? That what God, the Father is saying, and how he should behave in this particular situation. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग बाइबल ठीक से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो लोग कैसे परमेश्वर की तरह बन पाएंगे, यीशु मसीह की तरह बन पाएंगे? For those people who are not literate, who can't read the Bible, how will they be becoming like Christ? जस्ट परमेश्वर के सामने जो सिनारियो, जो सीन, जो भी हमारे पास एक चीज़ आता है जिसमें हम डिफ़िकल्ट हो रहे हैं कि हमको पता नहीं चल रहा है हमें क्या करना है, हमको जस्ट परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है. And in any situation, when we are in any problem and we don't know what we have to do, in that situation we have to listen to the voice of the Holy Spirit. तो आज मैं वही सीखी कि प्रभु मेरे को हर एक वो चीज़, मैं जो कुछ भी करूँ वो तेरी आवाज़ सुनते हुए करना चाहती हूँ. So I want to pray today that whatever I do, in any situation I do, I want to listen to you, the voice of your spirit, and then do. तो जब हम उसकी आवाज़ को, उसको विस्परिंग को जब सुनेंगे, तब हम उसकी तरह बन जाएंगे. And when we listen to his voice and to his whisper, then we can become like Christ. प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ, मुझे समय दिया है. I want to thank God for this time given for me. ये वचन सबको पता है, फिर भी मैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे दिल में ये डाल रहा था इस वक्त. This verse everyone knows, but the Holy Spirit is telling me about this verse. फिलिपियंस 4:4. Philippians 4:4. पढ़ सकते हैं हिंदी में? Can anyone read it in Hindi? वहाँ पे पॉल कहता है आप आनंदित रहो, और मैं फिर से कह रही हूँ आप आनंदित रहो. Here Paul is saying, rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. क्यों आनंदित होना है? क्योंकि हमारा यीशु नज़दीक में है. Why should we rejoice? Because Jesus is near with us. स्वर्ग जाने के लिए आनंदित नहीं, हमारा इस मसीह दौड़ में, not because we are going to heaven to be happy, but in our Christian life, in our Christian walk. जैसा पौल उन्होंने गवाही दिया है, मैंने दौड़ पूरा किया है. Like Paul was able to testify that I have run the race. तो जैसा भाई ने कहा, हम एक दौड़ में हैं. Like brother said, we are in a race. और ये दौड़ ऐसा दुख भरा दौड़ नहीं है. And this race is not a race of sadness. क्योंकि हम सच में हम देखते हैं मसीह हमारे लिए क्या किया है. Because we can really see what God has done for us. सारा दुख उसने ले लिया है. He has taken all our sadness upon him. हमें सिर्फ प्रेम करना है और दया दिखाना है. We have to just show love and mercy. जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है. The love that God has given inside us. सारी तकलीफ या मसीह लाइफ में जितनी भी सारी कलीसिया कहता होएगा हमारा लाइफ में आशीष है, बट मसीह जीवन में कितनी भी तकलीफ होने के नाते, all our troubles, all our difficulties, and in spite of all our troubles and difficulties, हमें आनंदित इसलिए होना है, यीशु हमारे करीब है. we should be joyful because Jesus is with और us. उसने दौड़ को जीत लिया है. And he has overcome the world. और वो कहता है, And he says, तुम गिर गया तो if you are fallen down, मत डरो. don't be afraid. आपके पास पैसा नहीं है, If you don't have money, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, if you don't have a fat bank balance, मैंने 4 में मेरा जन्म लिया है. look at me, I was born in a stable. बहस का इसमें मैंने जन्म लिया है. वहाँ कोई अच्छा सुगंध नहीं था.
I was laid in a manger, which is actually very bad stench. वो जब जवान 30 साल का हो गया था, And when he was a young man, 30 years old, कुछ लोग उसका छत निकालने की जितना उसके पास दया था, some people removed the roof of his house. छत निकाल के अपने एक बीमार, एक लाचार व्यक्ति को उसका घर में उतार पाया। They removed the roof of his house and brought a sick man तो to वो him. आपसे हमसे अधिक गरीबी था, He was more poor than you उसके and पास me. आपसे और हमसे बड़ा फैमिली था, He had a bigger family than yours और and mine. आपसे हमसे बड़ा जिम्मेदारी था उसके ऊपर। And he had more responsibilities than you and और me. ये सारा काम सिर्फ इंसान के ताकत पर किया है। And he did all this being a man. और इवन उसने जब भूखा था 40 दिन, And even when he was fasting for 40 days, जब भी उसने परमेश्वर का सामर्थ को उपयोग नहीं किया है। even then he didn't use his power of being जैसा God. भाई ने कई वचन मेंशन किया है, Like brother mentioned many verses. कई रात वो बिताया लोगों के साथ, कई दिनों में बिताया, बच्चा ब्लेसिंग वचन सुनाया, कोई ने उसको पूछा नहीं है। Like he spent so many days with the people, teaching them. He spent so many nights with the तो people. हमारे लिए- Nobody asked about his well-being. तो हमारे लिए बड़ी आशीष है, So this is a reason of big blessing for us. बड़ी आनंद की बात है। It's a reason of great joy for us हमारे ये लिए एक सहायक है, that we have a helper, और वो याजक भी है। and he is a high priest also. और जब भी हम पुकारते हैं And whenever we call on him, और हमारे साथ देता है, he is there with us, इसलिए हमें आनंदित होना है। and that's why we are joyful. इसलिए नहीं हम स्वर्ग जाएंगे, We shouldn't be joyful because we're going to heaven. यहाँ पे हम स्वर्ग को लेके आ सकता है, We can find heaven here on this earth. हमारा फैमिली में लेके आ We सकता can है, bring heaven in our family हम आनंदित होकर, by being joyful. क्योंकि यीशु हमारे साथ है। और लास्ट में यहाँ पे 7वां वचन एक पढ़ेंगे, Last verse 7 we'll read. सेम फिलिपियन 4:7। Philippians 4 verse 7. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. और इस दौड़ में परमेश्वर कहता है हमारा विचारों पर, हमारा और किस पर है, हिंदी में पढ़ सकते, हाँ, आपकी हृदय और आपके विचारों पर पहरा करता है। यदि हम इस दौड़ में खड़ा है, यदि हम परमेश्वर की संतान है, हम खड़ा है, तो किस पर वो पहरा लगाया है? हमारे हृदयों पर और हमारा विचारों पर। क्यों? हम पाप या हम भटकना, हम गिर जाना वहाँ होता है। तो परमेश्वर कहता है तू डरो मत, मैं तुम्हारा सामने खड़ा हूँ, और उठो और चलो। भले हमको इस संसार के टेम्पटेशन से हमें गिराता है। सॉरी, In our Christian race, God has is watching over us. He's watching over our lives. He's watching over our families, so that we don't fall. And here it says, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds," because that is where that can cause us to fall. इसीलिए हमारा इस मसीह जीवन आनंद के साथ जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है सारी बातों पर विजय पाकर। And that's why we should be joyful in our life, because Jesus is in front of us, who has conquered every sort of temptation and every sort of sin. और हर वक्त धन्यवाद के साथ उसके सामने जाना चाहिए। थैंक यू। And we should come before him with thanksgiving all the time. एक प्रवचनात्मक वचन बाय क्लिफर्ड से हमें मिली है आज। We heard an encouraging word from Brother Clifford. भाई ने कहा कि हम यीशु की जैसा बनने के बारे में बताया। Brother talked to us about becoming like Jesus. मसीह जीवन में 5 चीज़ हमें से याद रखिए है। In Christian life, we need to remember 5 things. जैसे कि आपके 5 उंगलियां हैं एक हाथ में। Just like we have 5 fingers in one hand. इन 5 उंगलियों में मैं ऐसा विभाग करूँगा, 2 सृष्टि से पहले, 2 यीशु आने के बाद, एक जो है फ्यूचर हमारे भविष्य में।
So out of the 5 fingers, 2 happened before Christ, 2 happened after Jesus, and 1 will happen in future. सो भाई ने क्या कहा, रोमन्स 8:29 में लिखा है कि हमें, एक बार पढ़ेंगे उसको। Romans 8:29, it says, let's read it इसमें लिखा once. है कि जिन्हें उसे पहले जान लिया है उसे पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो कि बहुत से भाइयों में पहले तो ठहरे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमको पहले से जान लिया। Here it says that Christ foreknew us, he knew us from before. सो ये पहली एक सीढ़ियाँ जैसा है, पहले जान लिया, एक सीढ़ियाँ है। So it's like a step. It's so he knew us before. That's one step. यानी सृष्टि से पहले हमें जान लिया तो एक सीढ़ियाँ है। He knew us before creation. That is the first step. अभी दूसरी सीढ़ियाँ ये है कि हमें ठहराया है। And the second step is he has made us. दूसरा ये है कि हमें ठहराया, निर्णय किया, ठहराया। He has also predestined. Predestined us. तो इसलिए मैं बोला कि ये जो पहले सीढ़ियाँ हैं, एक है परमेश्वर हमें जानना और दूसरी है हमें ठहराना। So first step is that he knew us. Second step is that he predestined us. ये सब सृष्टि से पहले की बात है। So this all happened before creation. तो भाई ने कहा कि हम सृष्टि से पहले ही परमेश्वर की प्लान में, योजना में है। And brother spoke to us and told us that we were there in the plan of God before creation. सो ये दो सीढ़ियाँ मैंने कहा कि जानना और पहले से ठहरना, ये सृष्टि से पहले परमेश्वर के दिमाग में है। And two steps that God knew it and God predestined it before creation. और तीसरी स्टेप ये अब यीशु मसीह आने के बाद, And the third step which happened after Jesus came, वो इस तरह है, हमें अभी बुलाया है। that is like सो this, यहाँ that पर लिखा है तीसरी he called us, confirmed. तीसरी वचन, फिर जिन्होंने उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। Moreover, whom he predestined, these he also called. सो यहाँ पर हमें एक आशा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आने के बाद आप हमें बुलाया गया है। So the third thing is that after Jesus came to this world, you and me have been called. और आखिर चौथी सीढ़ी ऐसा है कि जिन्हों बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है। And the fourth step here it says is whom he called, these he also justified. तो इसलिए ब्रदर्स याद रखिए, दो सीढ़ियाँ उस तरह है जो सृष्टि से पहले, दो सीढ़ियाँ जो है पहले बुलाया जाना और इसमें धर्मी ठहराया जाना, ये यीशु मसीह के आने के बाद। So brothers and sisters, there are two steps which happened before creation, that being known and being predestined, and one which happened after Jesus was that we have been called and we've been justified. 8:30 आखिरी में लिखा है कि जिन्होंने ठहराया उन्हें महिमा भी दिया है। And whom he justified, these he also glorified. सो ये है हमारे भविष्य के लिए। And this is for our future. सो 5 जो स्टेप्स क्या है, And what are the 5 steps? वापस याद मैं बात बताना चाहता हूँ। Let's remember again. पहले परमेश्वर हमें जान लिया, That first God knew us. हम सबको पता है, हमारे बारे में सबको पता है परमेश्वर को, And God knew everything about us. और हमें ठहराया है। And then he predestined us. तीसरी है हमें बुलाया है यीशु मसीह के द्वारा। And third thing is that he's called us. जिन्हें in बुलाया है Jesus. हमें धर्मी भी ठहराया है, And those whom he called, he is also justified. और कहता है कि उनको महिमा भी देगा। And then he says that they will also be glorified. एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे कि एक छोटी बच्चा जब जन्म लेते हैं, Just one small example, when a small newborn baby is born, अभी देखो रेना सबसे छोटा है, Renan is the smallest of all. जब 1 महीना का, जब 1 दिन का बच्चा था, When he was just a one-day baby, उसका रूप किस तरह का, माँ का रूप है या पिता का रूप है, कोई बोल नहीं सकते हैं। how was he in appearance? You couldn't make out whether he's like the mother or the father. लेकिन उसकी मम्मी डैडी से जन्मा है, But he was born of his mother and father. लेकिन उसकी रूप अभी तक मम्मी डैडी के जैसे नहीं आया। But his features are not like his mom and dad. क्या 1 महीने के बाद उसको रूप आ जाएगा? But in 1 month, did his features come? Not 10 yet. महीने के बाद उसको रूप आ जाएगा, मम्मी या डैडी के रूप आएगा? In 10 months, will he get the features of his mother or father? 50 साल के बाद उसको रूप आ जाएगा? In 50 years, will he get those features? तो शुरुआत के दिन में उसको रूप नहीं दिखाई देगा।
So in the beginning, he will not. The features are not known. धीरे धीरे जैसे 10 साल होता है, 15 साल होता है, 20 साल होता है, हम कह सकते हैं ये अभी पापा की तरफ दिख रहे हैं। But slowly, like 10 years, 15 years, we can say Pakka he's like his नहीं, father. कई बार ऐसा हो सकता है कि ये अभी मम्मी की तरफ दिख रहे हैं। Or sometimes it may be like, yeah, he's looking like his mom. लेकिन शुरुआत में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? But in the beginning, why you're not able to say? लेकिन उसके रूप अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। Because his face was like different. उसी तरह जब हम यीशु में शुरुआत में बुलाया गया है, हमारा कोई रूप नहीं है अभी। That's why same way when we are called first in Christ, we do not have those features. लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, हम सब एक नहीं, हम सब उसकी जैसा महिमा में बदल जाएंगे। But when Jesus will come, we shall see him and we shall be like him. तभी हम पता चलेगा हम परमेश्वर की संतान हैं। And then it will be known that we are लेकिन his शुरुआत में ये सब Christ नहीं children. दिखाई पड़ेगा। In beginning we cannot make out. तो एक दिन हम यीशु मसीह की जैसा दिखेंगे। And one day we will look like Christ. So we'll pray now. So let's pray now.